ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شاہ حویلی کے مکین رات کے دوسرے پہر اپنے اپنے کمروں میں سوئے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہیں ایک ننھی سی جان 19 سالہ آئرہ اپنے کمرے میں کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ باہر چلتے طوفان کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ شائیں شائیں کی خوفناک کان کو چیر دینے والی آوازوں پر وہ اپنی سسکیاں دبائے ہوئے تھی۔ بچپن سے ہی وہ تیز طوفان سے خوف زدہ ہوتی تھی۔ اوپر سے کڑکتی بجلی، بادلوں کی گرج اور برستی ہوئی تیز موسلا دھار بارش نے اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دبو تو نہیں تھی، لیکن وقت اور حالات نے اسے ایک کمزور لڑکی بنا دیا تھا۔ ایک طویل عرصہ وہ بڑی چچی اور چھوٹی چچی کے ظلم برداشت کرتی آئی تھی، مگر اب جس دن اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ اس حویلی کی مالک ہی نہیں، اس کے باپ کی ساری جائیداد اسی کے نام ہے، تب سے آئرہ میں سب نے کافی بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے بولنے اور آواز اٹھانے لگی تھی۔ اسی کے رہتے اس نے دادا جان سے کہہ کر اپنے لیے یونی میں ایڈمیشن لیا، جو احتشام کو ذرا نہیں بھایا۔ یونی جاتے ہوئے آئرہ پر ایک اور راز کھلا تھا۔ ردا شارق نامی لڑکے میں انٹرسٹڈ تھی۔ وہیں شارق نے چند ہی دنوں میں آئرہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا، جو ردا کی برداشت سے باہر تھا، اور حویلی آتے ہی وہ جیسے پھٹ ہی پڑی۔ اس دن کے لیے اسے میرے ساتھ یونی بھیجا تھا آپ لوگوں نے؟ ردا کی غصے سے بولنے پر محجبین صاحبہ کے تیوری میں بل پڑے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ انہوں نے نفرت سے آئرہ کو دیکھا، جو حیرانگی سے ردا کو دیکھ رہی تھی۔ 4 دن ہوئے نہیں ہے محترمہ کو یونی گئے ہوئے اور لڑکوں سے دوستیاں بنانے لگ گئی ہے۔ ہمارے کلاس کے سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکے کو پھانس لیا ہے اس نے۔ ردا کو غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ آئرہ نے لڑکوں سے دوستی کی ہے، اسے مسئلہ شارق کے ساتھ دوستی کرنے پر تھا۔ شارق نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی خواہش تھا، اور وہ تو ردا کے دل کی بھی چاہ تھا۔ اب وہ کیسے آئرہ کو اس کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی؟ جو شخص اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، وہ اب ہر وقت آئرہ کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی نکلی۔ پرورش کا کہاں اثر ہوتا ہے؟ جب خون میں ہی بے حیائی شامل ہو تو کہاں لفظوں کی بات سمجھ آتی ہے؟ آئرہ کی سنہری آنکھوں میں حیرت گھلی تھی۔ وہ تو شارق سے صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ بات کرتی تھی، اس سے زیادہ تو اس نے کبھی شارق کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اور ردا اس پر کیسے گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ چچی، میری ماما کے بارے میں ایسا کچھ مت بولیں کہ سچ جاننے کے بعد آپ کو اپنے الفاظوں پر شرمندگی ہو۔ اپنی ماں پر سوال اٹھتے دیکھ کر آئرہ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرے ساتھ زبان لڑاؤ گی اب تم، بے شرم لڑکی؟ غصے سے اس پر ہاتھ اٹھاتی ہوئی وہ غصے سے پھنکاری۔ یہ کیا کر رہی ہیں ماما آپ؟ آئرہ نے خوف سے آنکھیں میچی کہ احتشام نے ماجبین صاحبہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور خود آئرہ کے سامنے آیا تھا۔ اس کی بات تو سن لیں پہلے۔ ہر بار کی طرح آج بھی احتشام آئرہ کی ہی حمایت میں بولا تھا، جس پر آئرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ شروع سے ہی اس کا محسن رہا تھا، اپنی ماں کے ظلم سے اسے ایسے بچاتا آیا تھا۔ تم نہیں جانتے یہ لڑکی کتنی بد کردار ہے، انہوں نے غصے سے تل ملا کر کہا، جس پر احتشام نے آئرہ کو دیکھا، جو مسلسل گردن کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ آنکھوں میں چھائی نمی آنسوؤں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ میں خود سمجھاؤں گا اسے، آپ ریلیکس کریں، طبیعت بگڑ جائے گی آپ کی۔ اس نے ردا کو اپنے ساتھ لے جا کر جانے کا اشارہ کیا۔ آج تم نے اسے آخری بار میرے قہر سے بچایا احتشام، مگر اگلی بار اسے بچانے کے لیے تم موجود نہیں ہوگے۔ انہوں نے نفرت سے آئرہ کو دیکھا تھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں۔ آئرہ کو روتے دیکھ کر احتشام کو نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں دادا جان، اب دیکھیے گا آپ کی آئرہ آپ کا نام روشن اور سر بلند بھی کرے گی۔ نام تو ویسے بھی آپ کا بہت روشن ہے، کیونکہ آپ میرے دادا جان ہیں، اور ویسے بھی اب نہ مجھے چچی جان سے زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی ڈر لگتا ہے، پر اتنا نہیں لگتا اب تو۔
दादा जान के सर में मसाज करती वो शरारत से बोली थी। अगर मेरी बेटी को किसी से डर लगता है तो इसका दादा जान है ना, सबको आड़े हाथों लेगा। दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा था। बस दादा जान, आप हैं तो आपकी आयरा है। मुझे लगता है दादा जान, आपके बगैर मेरा वजूद कुछ नहीं है। हवेली में, इस दुनिया में मुझे मेरा कुल सरमाया आप लगते हैं। उनकी गर्दन में बाहों का हार डालती वो मुस्कुराई थी, जबकि माँ बाप की कमी उसे हर बार की तरह खली थी। और दादा जान की जान है आयरा। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। दादा, मुझे ना समझ नहीं आता, चच्ची मुझसे इतना बुरा बिहेव क्यों करती हैं? उसने नम आंखों से पूछा। हर एक का अपना अंदाज होता है आयरा, और वैसे भी मेरी आयरा दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी बेटी है। उन्होंने हमेशा की तरह उसे टाला। वो तो आपके लिए हूं ना, उनके लिए थोड़े ही ना हूं। उसने मुंह बसोरे कहा। अपने आप को आयरा इतना मजबूत बना लो बेटा कि लोग तुम्हें चाह कर भी तोड़ ना पाएं। आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाता, वरना लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हें बेमोल कर देंगे मेरी जान। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखे उसे समझाया था। कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान, अल्लाह पाक आपको मेरी भी उम्र लगा दे। आपके बगैर आपकी आयरा भी मर जाएगी दादा जान। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। उसने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा, जिस पर दादा जान भी आबदीदा हो गए। तो फिर अपना ख्याल रखो ना मेरी जान। मैंने अपने बेटे को वादा दिया था कि मैं अपनी आयरा का हर लिहाज से ख्याल रखूंगा। आप रखते हैं दादा जान, मेरा हर एक से ख्याल रखते हैं। एहतशाम भाई भी बुरे नहीं है, पर पता नहीं बड़ी चच्ची क्यों ऐसा करती हैं मेरे साथ। उसने नम आंखों से कहा और सर झुका दिया। तो फिर एक काम करो तुम, एहतशाम के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ। उसे बताओ कि उसकी मामा तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है। वो मुझ पर यकीन थोड़ा ही ना करेंगे दादा जान। उसने मासूमियत से कहा। ठीक है, फिर तुम एक डायरी लो और उसके ऊपर लिखती जाओ। जो जो तुम्हारी चच्ची तुम्हारे साथ करती हैं वो तो उस डायरी पर लिखती जाओ। उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा। और इससे क्या होगा? उसने नासमझी से पूछा। इससे ये होगा कि हम बड़ों को मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दे सकते, मगर हाँ कुछ शिकायतें, कुछ बातें अपने आप से कहकर दिल तो हल्का कर सकते हैं ना। और राइटिंग अच्छी हो जाएगी सो अलग। वो मुस्कुराए थे, जिस पर आयरा भी मुस्कुरा उठी थी। रही बात महाजबीन की, तो देखना एक दिन वो भी बदल जाएगी। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी। वो तसल्ली जो इस जिंदगी में तो कभी मुमकिन थी ही नहीं, क्योंकि महजबीन बेगम को शुरू से ही आयरा नापसंद थी। खावर शाह को हमेशा से आयरा बहुत प्यारी थी। उन्होंने तो अपने भाई के साथ अपने मरासिम बढ़ाने की ख्वाहिश भी नौमान शाह से की थी कि क्यों एहतशाम और आयरा की कोई छोटी मोटी रस्म करवा दे, मगर तकदीर ने उन दोनों भाइयों को अपने बच्चों की खुशियां देखने का मौका ही ना दिया। और फिर ये बात सिर्फ उन भाइयों और महजबीन साहिबा के दरमियान ही रही। इसका फायदा उठाती महजबीन साहिबा ने इस बात को अपने अंदर ही दफन कर लिया था और उन दोनों की ख्वाहिश पर खुद ही फातिहा पढ़कर अंधे कुएं में दफना आई थी। महजबीन और रिदा की बातों को सोचता हुआ वो गाड़ी आयरा और रिदा की यूनी की जानिब मोड़ गया। आज सिर्फ आयरा ही यूनिवर्सिटी आई थी। रिदा ने बहाना बनाया था। असल में तो शारिक और आयरा की बढ़ती दोस्ती उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, सो वो हवेली में ही रही थी। बहुत शुक्रिया शारिक, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। शारिक के बढ़ाए हाथ को पकड़ती वो मुस्कुरा कर बोली। वहीं गाड़ी में बैठे एहतशाम का खून खौल उठा। मतलब रिदा ने जो कहा था वो सब ठीक था। आयरा पढ़ाई के बहाने लड़कों से दोस्तियां बनानी फिरती थी। उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर एहतशाम ने जब्त से जवाब दिया। हाथ छोड़ो उसका। एहतशाम को देखकर आयरा ने नासमझी से उसे देखा। सुनाई नहीं दिया? छोड़ो आयरा का हाथ। शारिक के हाथ ना छोड़ने पर एहतशाम ने उसके मुंह पर मुक्का रसीद किया, जिस पर शारिक ने दर्द से आयरा का हाथ छोड़ा। और तुम चलो मेरे साथ। उसे अपने साथ लिए एहतशाम वहां से निकला, जबकि आयरा पीछे मुड़कर
शारिक के होंठ के पास से बहते खून को देखकर अफसुर्दा हुई थी। ऊपर से एहतशाम की मजबूत गिरफ्त पर मचल कर रह गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कों के साथ दोस्तियां करते हुए? एहतशाम के सवाल पर आयरा ने पहले तो उसे नासमझी से देखा और फिर कुछ सोचती हुई उसे देखने लगी। आपको शर्म आई मेरे दोस्त पर हाथ उठाते हुए? उसने दूबदू पूछा। नहीं आई, उसने गुस्से से इसे घूरा। ठीक है, फिर मुझे भी शर्म नहीं आई लड़कों से दोस्ती करते हुए। क्या मैंने कभी आपसे पूछा है कि आपकी कितनी दोस्तें हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं? उसने भवें उचकाई। नहीं ना, तो फिर आपको किसने हक दिया मुझसे ऐसे सवाल पूछने का? और रही मेरे दोस्तों की बात, तो मैंने बहुत सोच समझ कर दोस्त बनाए हैं जो मुझे समझते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मुझ पर बिला वजह शक नहीं करते, सवालात नहीं करते। आयरा की सुनहरी आंखों में देखते एहतशाम ने गहरी सांस खारिज की। बड़े हमदर्द दोस्त हैं तुम्हारे तो। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देखा। हाँ हैं, और क्यों ना हो। जिनका अपना कोई नहीं होता ना, उनके पास हमदर्द दोस्त होना किसी नायाब तोहफे की मानिंद होता है। वैसे ही शारिक, इब्राहिम, लाइबा मेरे लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं है, उसने जताते हुए कहा। देखता हूं ये कीमती तोहफे कब तक तुम्हारे साथ रहते हैं। जरा सी अंधेरी तो आने दो, देखना तुम्हें कैसे सुनसान जजीरों पर छोड़कर भाग जाएंगे तुम्हारे कीमती तोहफे जैसे दोस्त। आयरा के मुंह से उन लड़कों के नाम सुनकर एहतशाम के तन बदन में आग लग गई थी। वो आप लोग जैसे नहीं है। नम आंखों से उसे देखती वो वहां से जाने के लिए बढ़ी थी कि एहतशाम एक बार फिर उसकी राह में हायल हुआ। हम जैसों से क्या मुराद है? आयरा की सुनहरी आंखों में नमी उतरते देखकर वो उलझ कर रह गया। बेहिस, मफाद परस्त नहीं है वो लोग। वो तो एहतशाम को सबसे अच्छा समझती थी, मगर आज उसके सवालात पर उसे जी भर कर अफसोस हुआ। हम मफाद परस्त हैं? एहतशाम ने पूछा। मुझे क्या मालूम, आप खुद से पूछे। मुझे लेट हो रही है और दोबारा मुझे पिक करने की जहमत मत कीजिएगा। एहतशाम शाह, मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ। उसे सोचों के गहरे समंदर में गौता जन करके वो वहां से गई थी। मामा कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। दादा जान अपनी जान छिड़कते हैं तुम पर। मैं तुम्हारे लिए सबसे बैर लेने के लिए तैयार रहता हूं, फिर भी हम सब मफाद परस्त और बेहिस हैं तुम्हारी नजरों में। उसे जाते देकर एहतशाम ने अफसोस से उसकी पीठ को देखा। सुनो लड़की, आज जुनैरा को देखने मेहमान आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में ही रहना। आयरा ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। मैं क्यों अपने कमरे में रहूं चच्ची? मां जबीन साहिबा ने उसे गुस्से से घोरा। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा मनहूस साया मेरी बेटी की खुशियों पर पड़े। उनके गुस्से से कहने पर आयरा ने लब दबाए थे। उनके अंदर का डर उनके चेहरे पर साफ अयां था। हर बार ऐसा ही होता आया था। जब जब जुनैरा और रेदा का रिश्ता आता, वो आयरा को पसंद करके चले जाते। यही कुछ हाल छोटी चच्ची का भी था। उनकी मारुख के भी काफी रिश्ते ऐसे ही लौट गए थे, मगर अब उन्होंने उम्मीद एहतशाम से बांधी थी। अब उन्होंने बाहर लड़के देखना बंद कर दिए थे। जब घर में ही खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का हो, फिर बाहर खाक छानने की क्या जरूरत। आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं आऊंगी, उसने आहिस्तगी से कहा और अपनी किताबों को पढ़ने लगी। वैसे भी उसे कल असाइनमेंट सबमिट करवाना था। चाचू आ गए हैं? मां जबी ने गुस्से से उसे देखा। अपनी छोटी चच्ची से पूछो, मुझसे दूसरों के शौहर की खबरगिरी रखने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी मां को था ये शौक। अपनी मां के किरदार पर उठती उंगलियों से अब उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। चच्ची, खामोशी से कमरे में बैठी रहो, उन्होंने वॉर्न करते हुए कहा और वहां से चली गई। मारुख, चाचू आ गए हैं? अपने कमरे के सामने से गुजरती मारुख से पूछती वो दरवाजे पर आई। हाँ आ गए हैं, क्यों, तुम्हें कोई काम है मेरे बाबा से? मारुख ने जांचती निगाहों से उसे देखा। लास्ट टाइम चाचू ने मेरी स्टडीज में हेल्प करने का वादा किया था, उसने मासूमियत से कहा। देखो आयरा, जब अल्लाह पाक आपसे आपका बाबा और मामा ले ले तो दूसरों के मामा बाबा पर नजर नहीं रखते।
मेरे बाबा से तुम दूर ही रहो। वैसे भी वो साल में 1-2 बार हवेली आते हैं, ऊपर से तुम उन्हें अपने कामों में लगा लेती हो। वो मुझे भी इतना वक्त नहीं दे पाते जितना तुम उनका टाइम वेस्ट करती हो। मारूफ का लहजा बेशक धीमा था, मगर अल्फाज किसी खंजर की मानिंद उसके सीने में गड़े थे। सॉरी, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती, बस चाचू, वो भराई हुई आवाज में बोली थी। बस कह दिया ना, मेरे बाबा से दूर रहो तो बस दूर रहो। सख्ती से कहती वो वहां से चली गई। आंसू पीती हुई वो दादा जान के कमरे की जाने बढ़ी। दादा जान, मैं आ सकती हूं? रोने से उसकी सुनहरी आंखें सुर्ख हुई थी। मेरी जान को मेरे पास आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी किताब का मुताला करते दादा जान उसे देखकर मुस्कुराए थे। दादा जान, मुझे बाबा की याद आ रही है। उनके सीने पर सर रखती वो आप दीदा हुई थी। बाबा के पास आने के बाद भी बाबा की याद आ रही है मेरी गुड़िया को? उनकी आवाज में भारीपन था। मुझे मामा की भी बहुत याद आती है दादा जान। बड़ी चच्ची हमेशा मामा के लिए उल्टे सीधे अल्फाज यूज करती हैं, उन्हें बदकिरदार कहती थकती नहीं है। उसने नम आंखों से उसे देखा। मैं जानती हूं दादा जान, बाबा और मामा की लव मैरिज थी, मगर वो बदकिरदार नहीं थी। पसंद से शादी करना जुर्म है क्या? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। असल में तुम्हारी माँ जबीन को इसलिए बदकिरदार लगती है क्योंकि नौमान के साथ पहले मैं जबीन का रिश्ता तय पाया था, मगर सादिक तो तुम्हारी मामा को पसंद करता था। उसने एक दिन आकर मुझे अपने और तुम्हारी मामा के बारे में बता दिया। मुझे कोई एतराज नहीं था। बस फिर मैंने नौमान और तुम्हारी माँ की शादी करवा दी और फिर माँ जबीन और खावर की शादी करवा दी। ऐसे में हमारी रिश्तेदारी पर कोई आंच नहीं आई, मगर ये बात माँ जबीन ने अपने दिल पर लगा ली कि तुम्हारी मामा ने उसकी जगह ले ली। उन्होंने अफसोस से कहते अपना चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखा, जबकि आयरा ये खुलासा सुनकर दंग रह गई थी। खावर चाचू तो बहुत अच्छे थे, फिर वो ये क्यों समझती हैं मेरी मामा ने उनकी जगह ले ली है? उसने हैरत से कहा। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग खराब है, मगर तुम्हारी मामा बहुत अच्छी खातून थी, बहुत बाअदब, बड़ी ही सलीकामंद थी, और तुम पूरी की पूरी अपनी मामा पर गई हो। शायद इसीलिए तुम्हें देखते ही माँ जबीन के दर्द ताज़ा हो जाते हैं। अब की बार उन्होंने शरारत से कहा था। फिर तो दादा जान, आपको खावर चाचू की शादी चाची से नहीं करवानी चाहिए थी, उसने बरहमी से कहा, जिस पर दादा जान हंसने लगे। खुद ही कहकर खावर से शादी की थी। वो उसे सब बताते साथ साथ हंस रहे थे कि अचानक उन्हें बुरी तरह खांसी का दौरानिया शुरू हो गया, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं पानी लाती हूं दादा जान, फिक्र से कहती वो किचन के जाने पड़ी। उसके दिमाग से जुनैरा के रिश्ते वालों का ख्याल निकल गया था। इस वक्त उसके सर पर बस दादा जान की फिक्र सवार थी। उसका इस दुनिया में था ही कौन? अगर दादा जान को कुछ हो जाता, ये सोचकर उसके दिमाग में आते ही उसकी सांसें थम रही थी। ऊपर से उनकी खांसी को बढ़ते देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे और वो जल्दी जल्दी किचन में गई थी। तुम यहां क्या कर रही हो? जुनैरा उसकी बाजू पकड़कर उसे सामने लाई थी। वो दादा जान को खांसी हो रही है, उसने बौखलाते हुए कहा, जबकि उसकी सांसें फूली हुई थी। तुम्हें पता था ना कि मुझे देखने मेरे रिश्ते वाले आए हुए हैं, तुम फिर भी बहाने से नीचे आ गई ताकि वो लोग तुम्हें देखकर तुम्हें पसंद कर जाएं और मुझे इनकार कर दें। जुनैरा के लहजे में उसका हसद बोल रहा था, जिस पर आयरा ने अपनी दुखती हुई बाजू पर उसकी गिरफ्त मजबूत होते देखकर सिसक उठी। प्लीज मुझे पानी लेकर जाने दो, दादा जान को जरूरत है मेरी, उसने रोते हुए कहा। दादा जान मरते हैं तो मर जाएं, मगर आज तुम यहां से कहीं नहीं जाने वाली। मेहमानों को ड्राइंग रूम में बैठे देखकर जुनैरा ने दांत दबाए कहा था। अपनी हद में रहें जुनैरा आपी, आपके लिए वो सिर्फ दादा जान है, मगर मेरे लिए मेरा वो कुल जहान है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपकी रूह नहीं कांपी दादा जान के लिए ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? उसने नम निगाहों से उसे देखा और झटके से अपनी बाजू छुड़ाई। आपका रिश्ता हो या ना हो,
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر دادا جان کو آج کچھ ہو گیا تو اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی, سمجھی آپ؟ آنسو صاف کرتی وہ دو بدو بولی کہ سامنے سے آتے شخص کے قدم اسے دیکھ کر منجمد ہوئے. وہ نازک سی کانچ کی گڑیا جس کی سنہری آنکھیں سرخ ڈوروں میں مزید حسین لگ رہی تھی, اس کی دودیا رنگت پر ٹیپ پنک کلر کا سوٹ جو اس پر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رنگ اسی کے لیے بنا ہو, سنہری بال جو کیچر میں مقید تھے. ایکسکیوز می. نم نکھاؤں سے اسے نظر انداز کرتی آئرہ وہاں سے گئی, جبکہ وہ شخص تو جیسے جم سا گیا. حوروں کا اس نے سنا تھا, مگر اصل زندگی میں حور دیکھنے کا اتفاق اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا. یہ کون تھی؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا, جس پر زنیرہ کی آنکھوں میں نمی اتری. وہ, اس کی آواز بھر آئی تھی جس پر وہ لب دبائے آئرہ کو جاتے دیکھ کر لب بھینچ گئی. ماما, انہیں کہیں نہ اس لڑکی کو بلائیں, اس نے اندر جاتے ہی کہا, جس پر دونوں چچی کو پریشان دیکھا. وہیں زنیرہ کی نم آنکھوں کو دیکھ کر میجبین صاحبہ کا خون کھول اٹھا. آئرہ کو سوچتے ہی, جی میجبین صاحبہ, بلائیں نہ اس لڑکی کو جسے آپ نے ہم سے چھپایا ہوا ہے. اور زنیرہ کی سانولی رنگت کو دیکھ کر چپ ہوئی تھی. وہ لڑکی آئرہ ہے, ہم نے اسے چھپایا نہیں ہے. انہوں نے سانس خارج کی اور مسکرائی. ہاں تو بلائیں آئرہ کو, اس نے لڑکے نے زور سے جواب دیا. ہاں کیوں نہیں, اس رشتے کے بعد ہم آپ کو اپنی بہو سے بھی ضرور ملواتے. انہوں نے بر وقت بات سنبھالی, جبکہ چچی کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی. بہو؟ اس لڑکے نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا. جی, میرے احتشام کی بیوی ہے, میرے مرحوم جیٹھ کی اکلوتی بیٹی ہے آئرہ. ان کی ایما پر ہی تو احتشام اور آئرہ کی نسبت طے ہوئی تھی, اور آج اسے آپ سے نہ ملوانے کی وجہ میرے سسر کی ناساز طبیعت ہے. وہ ان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے. بڑی ہی پیاری بچی ہے میری بہو آئرہ, انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا, جبکہ پیاری بہو پر ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. آپ لیں نا کچھ. رحیم کے تو مانو ارمانوں پر اوس پڑ گئی, جس پر وہ ضبط کرتا وہاں سے جانے کے لیے اٹھا. مجھے ضروری کام ہے, میں چلتا ہوں. رحیم بہانہ گھڑتا ہوا وہاں سے نکلا. وہیں اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی نکلی. آئرہ, نیچے آؤ. غصے سے اسے بلاتی ہوئی وہ غصے سے لال ہو گئی تھی, جبکہ شمیم چچی تو اب بہو پر اٹکی ہوئی تھی. اتنا تو انہیں پتا تھا کہ میجبین صاحبہ جائیداد اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں, مگر احتشام اور آئرہ کے بارے میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. یہ بات اچانک ان کے دماغ میں کہاں سے آئی تھی؟ احتشام بھائی, دادا جان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, پلیز جلدی سے آ جائیں. آنسوؤں کے درمیان بولتی وہ نیچے آتی میجبین صاحبہ کی آوازوں پر ہساساں ہوئی. تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اسے بازو سے گھسیٹتی ہوئی وہ اپنے ساتھ لیے نیچے آئیں, جبکہ آئرہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی آئی. چچی, مجھے درد ہو رہا ہے. اپنے دکھتے بازو کو دیکھ کر وہ منمنائی, جبکہ اسے درد سے کرلاتے دیکھ کر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی. درد ہو رہا ہے تمہیں؟ میری کہی بات نہ ماننے کی سزا تو ملے گی تمہیں. انہوں نے غصے سے اسے پھینکنے کے انداز سے صوفے پر ڈالا. آنکھوں میں خوف لیے وہ انہیں اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر اس کا حلق تک خشک ہوا. منع کیا تھا تمہیں نیچے آنے کے لیے. اس کا منہ دبوچتی ہوئی وہ خون خوار لہجے میں بولی. دادا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, چچی ان کے لیے پانی لینے آئی تھی. بمشکل بولتی وہ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا ہوئی. مر جانے دیتی انہیں. زنیرہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے جس پر آئرہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا. ابا جان کی طبیعت خراب ہونے کا تو صرف بہانہ ہے, اصل میں تو ان لوگوں کے سامنے آنا تھا اسے. جیسی ماں ویسی بیٹی, مردوں کو پھانسنے کی لت جو لگی ہوئی ہے. یہ جو حسن ہے اسے ضائع تھوڑے ہی ہونے دے گی. جہاں امیر کبیر لڑکا دیکھا نہیں وہاں آ جاتی ہے اپنے حسن کی رانائیاں بکھیرنے. ایسے ہی لچھن ماں کے تھے, ورنہ کہاں نعمان شاہ اور کہاں وہ نیچ گھرانے کی فاریہ. اس نے بھی ایسے ہی نعمان شاہ کو اپنے حسن کی رانائیاں دکھا دکھا کر اپنے عشق میں دیوانہ کیا ہوگا. ان کی بھڑاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, جبکہ آئرہ کی ضبط اب جواب دے گئی تھی.
आने दो आज एहतशाम को, देखना कैसे इसे घर से बाहर निकलवाती हूं। उन्हें खुद से दूर झटकती वो आयरा खड़ी हुई। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आप लोगों ने मुझे, बस अब बहुत हो गया। आयरा ने नम निगाहों से उन सबको देखा। मेरी मामा बाकिरदार थी और मैं कोई अपने हुस्न की रानाइयां दिखाने नहीं आई थी। दादा जान के लिए पानी लेने आई थी। मुझे कोई शौक नहीं किसी के सामने खुद को पेश करने का। और आप क्या मुझे घर से निकालेंगी? निकालूंगी तो मैं आपको। ये हवेली मेरी है। जिस पैसों पर आप ऐश कर रहे हैं वो सब मेरा है। तो उसूलन इस हवेली से आप लोग निकलेंगे। आयरा के मजबूत लहजे पर वो सब दंग निगाहों से उसे देखते रह गए। वहीं एहतशाम ने उसकी बातों पर मुट्ठियां भींच ली। आइंदा के बाद अपने जहन से मुझे इस हवेली से बाहर निकालने की धमकी दी तो आप लोगों के हक में अच्छा नहीं होगा। मैं इस हवेली के अंदर रहूंगी और आप सब बाहर। फिर सारा रोब और दबदबा धरे का धरा रह जाएगा। आंसू साफ करती हुई वो वहां से गई थी, जबकि महजबीन साहिबा एहतशाम को वहां खामोशी से खड़े देखकर आंसू बहाना शुरू हुई थी। वहीं शमीम चच्ची मारूख का हाथ पकड़े वहां से निकली। एहतशाम, देखा ना तुमने इस लड़की को, कैसे मुझे हवेली से निकालने की धमकियां देती है। मैं तो इसे अपनी बच्चियों की तरह समझती आई हूं। इसे लड़कों के साथ दोस्तियां करने पर भी मैंने रोका था, मगर तुमने कहा कि तुम खुद इसे समझाओगे, और अब देखो इसने क्या किया हमसे। उन्होंने रोते भरपूर अदाकारी का मुजाहरा किया। तुम मेरे साथ आओ। एहतशाम का हाथ पकड़ती हुई वो अपने कमरे की सिमत गई। कमरे को लॉक करती वो एहतशाम को लिए बेड पर बैठी। तुम जानना चाहते थे ना मैं हमेशा क्यों आयरा के साथ सख्ती से पेश आती हूं? मैं क्यों चाह कर भी उसके साथ नरम नहीं हो पाती? एहतशाम अपनी रोती बिलकती मां को देखकर इस बात में गर्दन हिलाने लगा। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद से मैं नौमान शाह की गलत निगाह से खुद को बचाती आई हूं। आयरा को देखती हूं तो उसकी गलत और गलीज हरकतें याद आती हैं। नौमान शाह की हरकतें सुनकर उसके जबड़े भेंचे थे। मैं हमेशा इसीलिए चुप रहती थी कहीं सब मुझे गलत ना कह दें और इस हवेली से बाहर ना कर दें। आज उसी मकार आदमी की बेटी ने मुझे वही धमकी दी जिसके खौफ से मैंने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। मुझे मेरे बच्चों से दूर कर देते ये सब लोग। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ एहतशाम, मगर मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। वो रोती हुई उसके कंधे पर सर रख गई। उन्हें खामोश करवाकर वो अपनी जगह से उठा। कहाँ जा रहे हो तुम? उसकी लहू छलकती आंखों को देखकर उनके अंदर सुकून उतर आया। दादा जान के पास जा रहा हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? वो कहकर रुका नहीं था, जबकि माजबीन साहिबा के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी थी। जो इल्जाम उन्होंने नौमान शाह पर लगाए थे सरासर झूठ थे। हाँ, खावर शाह के मरने के बाद महजबीन ने न जाने कितनी ही बार नौमान शाह को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की थी, मगर उन पर तो फारिया बेगम की मोहब्बत सवार थी। आयरा की पैदाइश पर ही वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनके बाद नौमान शाह अपनी जिंदगी फकत आयरा के नाम कर गए। फारिया बेगम की वफात के 3 साल बाद वो भी इस दुनिया से कूच कर गए और अपनी सारी जायदाद और हवेली आयरा के नाम करके वो उसकी जिम्मेदारी अब्बा जान के जिम्मे लगा गए। क्या हुआ था दादा जान को? उनके हाथ पकड़े वो फिक्र से बोला, जबकि उसकी सुर्ख आंखों में अजीब ही कोहराम मचा हुआ था। कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं तुम्हारे दादा जान। क्या ही हो सकता है? एहतशाम ने तकलीफ से आंखें मीची। मेरा काम करोगे? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। जैसे आज तक तुमने आयरा को मेरी बीमारी का नहीं बताया, वैसे ही उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो या उससे पूछो कि क्या वो किसी और को पसंद करती है। उससे आयरा की शादी करा दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। एहतशाम की समातों में आयरा की बदतमीजी गूंजने लगी। उसका बेबाक लहजा उससे वो फैसला करवा गया जो उसने कभी अपने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। दादा जान, मैं आयरा से शादी करना चाहता हूं, ये जानने के बावजूद कि वो किसी और को पसंद करती है। उसने सर झुकाए कहा, जबकि दादा जान हैरानगी से उसे देखते रह गए। वो जिसे पसंद करती है वो बहुत घटिया इंसान है। मैं आपको बताना चाहता था मगर मुझे मौका नहीं मिल सका।
वो न जाने क्या क्या मन घड़त लगाता हुआ उन्हें अपने लिए कायल कर गया। जो तुम्हें मुनासिब लगे, बस तुम आयरा को हमेशा खुश रखना। उन्होंने बड़े मान से अपने पोते के सर पर हाथ रखा। कहीं न कहीं दिल भी मुतमईन हुआ था एहतशाम और आयरा को लेकर। बस फिक्र थी तो महजबीन साहिबा के रवैये की, जिसे उन्होंने एहतशाम की ख्वाहिश के आगे झटक दिया था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आयरा नौमान शाह, दूसरों की तजलील कैसे की जाती है, और जिस जायदाद पर तुम्हें घुमंड है, देखता हूं वो तुम्हें मेरे कहर से कैसे बचाती है। आयरा के बाबा का बिजनेस शफक शाह संभालते थे, जबकि एहतशाम ने खुद से अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया था। सिवाय हवेली में रहने के उसने अपने बाबा तक की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। दादा जान के कमरे से निकलते ही एहतशाम ने अपने फैसले से महजबीन साहिबा को आगाह किया। उन्हें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अब एहतशाम उन्हीं की सुनने वाला था, फिर चाहे आंसुओं की ओट में छुपाया गया झूठ ही क्यों ना हो। मारूख और शमीम चच्ची पर यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, मगर वो खामोश हो गई थी। आयरा की धमकी उन पर तो अच्छे से कारामद ठहरी थी। जैसे ही आयरा को अपने और एहतशाम के रिश्ते की बात पता चली, वो फौरन से उसके पास आई। वहीं एहतशाम अपनी फाइल्स को देखता उसके इंतजार में अब तक जाग रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। फिर किससे करोगी? आयरा के इनकार पर मुस्कुराया। किसी से भी कर लूंगी, मगर आपसे नहीं करूंगी। उसके मुस्कुराने पर किलस उठी थी। जाओ और दादा जान को कह दो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं इनकार नहीं करने वाला। उसने साफ इनकार किया। मुझे पता था आप लोग मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं पहले से निकाह कर चुकी हूं। एहतशाम शाह उसकी बेफजूल बात पर हंसा। अच्छा, और कब किया तुमने ये निकाह? उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। आप मुझे इस हवेली में सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। मुझे लगता था आप मुझे समझते हैं। उसने अफसोस से उसे देखा, जिस पर एहतशाम चलता हुआ उसके पास आया। अच्छा लगता था ना, तो शादी करने में क्या हर्ज है? उसने नफी में गर्दन हिलाई और दादा जान के कमरे की जानिब भागी। उसने न जाने कितनी ही बातें उन्हें कही, मगर दादा जान का फैसला 1 इंच नहीं हिला। उन्होंने तो जैसे कानों में रुई ठूंस ली थी। मैं शारिक को पसंद करती हूं और उसी से शादी करूंगी। आयरा की ढिठाई पर उसके पीछे आते एहतशाम शाह ने सख्ती से मुठ्ठियां भींच ली। आयरा, एहतशाम तुम्हारे लिए बेहतरीन हम सफर रहेगा। दादा जान प्लीज। उन्हें ना मानते देखकर वो रो दी। मेरा यहां कोई नहीं था। आज उस एहतशाम ने आपको भी मुझसे छीन लिया। मैं एक बार फिर यतीम हो गई दादा जान। आप भूल सकते हैं एहतशाम माजबीन चच्ची के बेटे हैं। मैं नहीं भूल सकती। वो रोती बिलकती वहां से गई। वहीं दादा जान का दिल पिघला, जिसे देखकर एहतशाम उनके पास आए थे। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मना लूंगा इसे। उन्हें कायल करता हुआ वो आयरा के कमरे की सिमत पड़ा, जबकि आयरा की आवाज सुनकर उसकी पेशानी पर बल उभरे थे। शारिक, तुम मुझसे शादी करोगे? देखो, मैं जानती हूं हम सिर्फ दोस्त रहे हैं, मगर मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। प्लीज इनकार मत करना। शारिक, जो वैसे ही आयरा की खूबसूरती और दौलत से अच्छा खासा इम्प्रेस था, चंद दिनों में वैसे भी वो उसे प्रपोज करने का इरादा रखता था। ऐसे में आयरा का शादी के लिए कहना उसे 7वें आसमान पर पहुंचा गया और उसने फौरन से पहले हामी भर ली। साथ ही दोनों ने मिलकर गवाहान और निकाह की जगह भी तय की। इससे बेखबर आयरा के दरवाजे के साथ खड़ा एहतशाम उसकी सारी प्लानिंग सुन चुका था। सुबह होते ही आयरा दादा जान से मिलकर यूनिका कहकर हवेली से निकल गई। वहीं उसके पीछे पीछे एहतशाम भी दूसरी गाड़ी में निकला। अपने कुछ खास बंदों को कहकर एहतशाम ने शारिक को रास्ते से ही उठवा लिया था और खुद निकाह ख्वां और अपने गवाहान को लेकर आयरा के बताए गए एड्रेस पर पहुंचा था। तुम्हें क्या लगता है आयरा नौमान शाह? मुझे इनकार करना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। शौक से करो शारिक से शादी।
शारिक को नंबर मिलाती आयरा को परेशान देकर वो मजे लेता हुआ मुस्कुराया। क्या हुआ, तुम्हारा शारिक फोन नहीं उठा रहा? एहतशाम को देखकर आयरा की आंखें हैरत से फैली। शारिक कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने खौफ से पूछा। जहां उसे होना चाहिए वो वहां, और जहां मुझे होना था मैं यहां हूं, उसने मुस्कुराकर शाने उचकाते हुए कहा, जबकि आयरा ने खौफ से कदम पीछे लिए। तुम्हें क्या लगा था तुम शारिक के साथ यहां भाग कर निकाह कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बात दरअसल ये है जाने मन, एहतशाम की बारीक निगाहों से बचकर नहीं जाओगी। एहतशाम के मुस्कुराने पर वो उसे देखने लगी थी, जबकि आंखों से गर्म सियाल बहता हुआ मादा उसके रुखसार भिगोने लगा था। अब बताओ, प्यार से 3 बोल बोलोगी या फिर जबरदस्ती? वो उसके बेहद करीब आकर रुका। एहतशाम की आंखों में एक अलग ही जुनून सवार था। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप मेरे लिए भाई जैसे हैं। मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा। एहतशाम की गर्म सांसों से उसे अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। अब देख लो। आयरा के आंसू साफ करता वो उसकी आंखों में देखने लगा। चमकती सुनहरी आंखों में इस वक्त सिवाय खौफ के कुछ दिखाई नहीं दिया। वही मासूमियत थी उसके चेहरे पर जो हमेशा से देखता आया था। वो बेबाकी, वो बदकलामी खुद सरी कहीं नहीं थी जो उसने उसमें कल देखी थी। वो फौरन से पहले उससे दूर हुआ। तुम मुझे मजबूर कर रही हो गलत कदम उठाने पर। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मैं दादा जान को सब बता दूंगा। तुम यहां कैसे आई और क्यों आई थी? उसकी गर्दन को पकड़कर वो उसे अपने करीब कर गया। उसकी गर्म सांसें अपने लबों पर महसूस करती वो सिसक उठी। मैं करूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी। प्लीज मुझसे दूर हो जाएं। एहतशाम के लबों पर तनफ्फुर फैला था। उसे गुस्से से बेड पर फेंक कर वो कमरे से बाहर गया। उसे यकीन था आयरा अपनी मामा के घर पर आएगी, तभी तो वो निकाह ख्वाह और गवाहान भी साथ लाया था। कुछ लम्हे बड़े दर्दनाक गुजरे आयरा पर। वो रोती बिलखती रह गई। जो होना था वो हो चुका था और अब वो एहतशाम शाह की हो गई थी। उस पर किस्मत की देवी कभी मेहरबान नहीं हुई थी। पैदा होते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। फिर 3 साल की उम्र में उसके बाबा भी उसे इस जालिम दुनिया के हवाले करके अपनी बीवी के बराबर में अब्दी नींद सो गए। उसका जुर्म था बेटी होना या फिर नौमान शाह और फारिया शाह की बेटी होना। वह भी इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि डोर नॉक की आवाज पर सिसक उठी। सामने से आते एहतशाम ने कुछ लम्हे ठहर कर उसे देखा। सब बदल गया था। वो आज वो आयरा नहीं थी जिससे उसे हमदर्दी थी। वो तो महज नौमान शाह की बेटी थी जिसने एक तवील अरसे तक उसकी मां को हरेस किया था। क्यों, मेरा करीब आना बुरा लग रहा है तुम्हें? उसके लहजे की हकारत पर आयरा ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। दूर रहें, उसे खुद से पीछे धकेलती आयरा की हिम्मत ने जवाब दिया। अपनी मां की अजियत को सोचता हुआ वो कर्ब से आंखें मींच गया। उसकी आंखों में वही जुनून तारी हुआ था जो महजबीन साहिबा की बातें सुनकर तारी हुआ था। आयरा उसे नुमान शाह के मकाफाते अमल का एक जरिया लगी थी। अपने जुनून और तैश में वो उसकी जात की धज्जियां भिकेरने लगा। वो सिसकती हुई उसके जुल्म पर एहतजाजी मुजाहरा करती करती बिला आखिर उससे हार गई। कितने ही आंसू तकिए में जज्ब हुए। सुनहरी आंखें पत्थरा गई थी। वजूद बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था। सारी रात कांटों पर गुजरी थी। एहतशाम को सोते देखकर आयरा अपने बिखरे वजूद को लिए फर्श पर बैठ गई। अपने मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियां भी एहतशाम के खौफ से छुपाए हुए थी। कई घंटे गुजरने के बाद एहतशाम ने उठते ही आयरा की तलाश में नजरें दौड़ाईं, मगर अगले ही लम्हे उसे बेड के पास जमीन पर उसे बैठे देखकर सुकून मिला, मगर उसे रोते देखकर वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। यहां क्या कर रही हो? अपनी शर्मिंदगी को झटकता वो उसके सर पर आन खड़ा हुआ। वह एहतशाम से शदीद खौफजदा हो गई थी। उसे देखकर वो खुद में सिमटी थी। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे जाने दें, और प्लीज दादा जान को मत बताइएगा। मेरा उनके अलावा कोई नहीं है।
दोनों हाथ जोड़ती वो एहतशाम को नए सिरे से शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में डाल गई। नहीं बताऊंगा, मगर एक शर्त है मेरी। आयरा की सोच मुतुरम आंखों से नजरें चुराता वो उसे देखने से भी गुरेजा हुआ। यहां जो भी हुआ, हमारा निकाह और रात में जो कुछ भी हुआ, उसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी, वरना रात से भी ज्यादा बुरी तरह पेश आऊंगा। उसकी धमकी पर आयरा ने खौफ से आंखें मीच ली और उसकी हर बात मानने का वादा कर लिया। हवेली पहुंचते ही एहतशाम ने आयरा को उसके कमरे में जाने का इशारा किया और फिर अपने कमरे में गया। एहतशाम के खौफ से आयरा बहुत कम अपने कमरे से निकलती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दादा जान ने उन दोनों की शादी की छोटी सी तकरीब रखी, जिसमें चंद ही मेहमान शामिल थे। वो दिन था जब आयरा दादा जान के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी और रुखसत होकर एहतशाम के कमरे में आ गई थी। एहतशाम को कमरे में आते देखकर ही उसका खौफ से रंग सफेद पड़ा था। वहीं एहतशाम के लबों पर तनफ्फुर बिखरा था। वह एहतशाम के लिए वो शय थी जिसे रौंद कर वो उसके बाप से बदला ले सकता था। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि दादा जान भी इस जालिम दुनिया के हवाले करके चले गए। वो खामोशी से आंसू बहाती रह गई थी। कितनी ही शिकायतें लबों पर ही रह गई थी। वो तो हर रोज अपने मरने की दुआएं करती थी, मगर दादा जान उसे छोड़कर चले गए थे। दादा जान के जाने का गम अभी ताज़ा ही था कि बड़ी चची ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। वो सब खामोशी से बर्दाश्त करती आई थी। एहतशाम का खौफ, अपने ना होने का दर्द उसे बोलने की सकत छीन गए थे। वो तो जैसे अपनी हवेली में जिंदा दरगोर होकर रह गई थी। दादा जान के इंतकाल के बाद से एहतशाम उससे कम ही मुखातिब होता। अगर बात भी करता तो उसे देखने और उसके पास जाने से गुरेज ही करता आ रहा था। क्यों, अब कहाँ तुम्हारी गज भर की जबान अब्बा जान के साथ कब्र में उतर गई है? मेजबी ने हकारत से उसे देखा था, जबकि आयरा ने नम निगाहों से उन्हें देखा, जो उम्र में उसकी मामा की थी, मगर ज़र्फ में वो उसके दुश्मन से भी बदतर उसके साथ पेश आती थी। वो खामोशी रही। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। अब बस मौत का ही इंतजार था, जो आकर नहीं दे रही थी। ये हवेली तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, मगर हुकूमत मेरी है आयरा शाह। आइंदा के बाद मुझे धमकी देने से पहले 100 बार सोचना और आईने में खड़े होकर अपनी हालत देखना। खुद ब खुद सब भूल जाओगी। आयरा की सुनहरी आंखें उनके चेहरे पर ठहर सी गई थी। आपको खुदा से डर नहीं लगता? आयरा आहिस्तगी से बोले गए जुमले पर किचन में आते एहतशाम के कदम रुके। तुम्हें लगता है ना, काफी है, उन्होंने चिढ़कर कहा। मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह से, और मुझे उन पर यकीन भी है, इसलिए मैंने अपने फैसले उनके हवाले कर दिए हैं। इस दुनिया में मेरे साथ जो हुआ, जिसने किया, जो करने वाला है, सब अल्लाह को जवाब दे होंगे। उसकी नम आंखों में एतमाद था, यकीन था, जिसे देखकर वो पल भर के लिए घबरा गई थी। तो मुझे अल्लाह के कहर से डरा रही हो, घटिया लड़की? उन्होंने गुस्से से चूल्हे पर रखे खौलते पानी को उठाकर उसके हाथ पर उंडेल दिया। वो दर्द से सिसक उठी थी, मगर मुंह से उफ तक नहीं की थी। उसकी बर्दाश्त देखकर जहां एहतशाम उसके खुदा पर छोड़े उसके फैसलों पर बौखलाहट का शिकार हुआ था, वहीं अपनी मां के दिन ब दिन बढ़ते जुल्म को वो खामोशी से देखता आ रहा था। मगर आज तो सारी हदें पार हो गई थी। आई बड़ी मुझे डराने वाली। उसे जब्त से आंखें नीचे देखकर वो वहां से गई, जिस पर एहतशाम उन्हें आते देखकर दीवार की ओट में हो गया था। मैंने सब आप पर छोड़ा है अल्लाह पाक। दर्द से सिसकती वो अपना सुर्ख हाथ देखती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते देखकर एहतशाम मेजबीन साहबा से बात करने के लिए उनके कमरे की जाने बढ़ा कि उनकी बातें सुनकर वो वहीं दरवाजे पर ही रह गया। आपने ऐसा क्या कहा जो भाई भी उस आयरा की हिमायत नहीं करते, और अब तो जब वो उनकी बीवी भी है तब भी बस खामोशी से देखते रहते हैं? रेदा के सवाल पर मुस्कुराई थी। एक झूठी गोहर अफशानी की है और बस।
कैसी गौहर अफशानी? रिदा ने नासमझी से उन्हें देखा। यही कि मैं आयरा से इसलिए नफरत करती हूं क्योंकि नौमान शाह की मुझ पर गलत निगाह थी। एहतशाम ने अपनी आंखों को सख्ती से मींचा था। शायद आज ही उस पर खुलासा होना लिखा था। क्या? ताया अब्बू, वो ऐसे तो नहीं थे। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। उन्होंने उसे खामोश रहने का कहा। वो तो कभी यहां आते भी नहीं थे। फिर? झूठ बोला था मैंने, ताकि एहतशाम की नजरों से आयरा की हमदर्दी खत्म हो जाए, और वो हो गई, उन्होंने मगरूर अंदाज में कहा। और अभी वो मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर खड़े एहतशाम को देखती रह गई। एहतशाम, मैं मजीद और झूठ नहीं सुन सकता। आपको अपनी मां कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। एहतशाम ने गुस्से से देखा और वो उनके पास से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। जले हुए हाथ के साथ एहतशाम की शर्ट प्रेस करती आयरा एहतशाम की मौजूदगी से बेखबर जल्दी जल्दी प्रेस करने में मसरूफ थी। कहीं एहतशाम की शर्ट वक्त पर ना मिलने पर वो उसके साथ वहीं बेरहमाना सलूक ना करे। आयरा, एहतशाम की आवाज पर उसके हाथों में फुर्ती आ गई, मगर जले हुए हाथ में दर्द की टीसें उठी थी। आयरा उसके पास आकर रुका। आई एम सॉरी, मैं बस कर देती हूं अभी। वो अभी बोल ही रही थी कि एहतशाम उसे खुद से लगा गया। उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो पहली बार रोया था। एहतशाम, मुझसे कोई गलती हो गई है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आयरा की खौफजदा आवाज पर एहतशाम ने नफी में गर्दन हिला दी। आई एम सॉरी आयरा, मैंने बहुत गलत किया ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी माफी तो क्या, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए एहतशाम ने आयरा के लरसते वजूद को सुकून दिया। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? एहतशाम ने उसे थोड़ी देर के लिए खुद से अलग किया था। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम पर बहुत जुल्म किए हैं आयरा। आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम हर्ट हो, जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, और ना ही किसी और को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने दूंगा। उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में लिए वो लब दबाए हुए था। सच कह रहे हैं आप? उसकी आंखों में एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसकी आंसू साफ करता वो फिर से उसे खुद के मजबूत हिसार में भर गया। वो वैसी ही थी, मासूम, मगर वो तो समझदार था। फिर वो कैसे किसी की बातों में आ सकता था? उसे खुद पर अफसोस हुआ। एहतशाम के मोहब्बत भरे लम्स उसे सुकून पहुंचा रहे थे, जिस पर कुसमुसाती मुस्कुराकर उसे देखने लगी। आप मुकरेंगे तो नहीं ना? आप हमेशा मेरा साथ देंगे? मरते दम तक। उसकी सुनहरी आंखों को मोहब्बत से चूमता वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मस कर गया। न जाने कब उसे आयरा से मोहब्बत हुई थी, जब जब वो सब उसके लिए करता था, या तब जब उसे शारिक के साथ देखता था। उसे खुद भी समझ में नहीं आया था। बस उसके लिए इतना ही काफी था कि आयरा उसकी थी और इसे उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया। 2 साल बाद, इन 2 सालों में एहतशाम ने आयरा को इतनी मोहब्बत दी कि वो अपने सब पुराने गम भूल गई। इस अरसे में अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था, जिसका नाम एहतशाम ने मायरा रखा था। अपनी बेटी में एहतशाम की जान बसती थी। वो सारा दिन उसके नखरे उठाता था, और मायरा भी अपनी मां से ज्यादा बाप के करीब थी। आयरा के पास तो वो तभी आती जब उसे फीड करना होता, वरना सारा दिन वो बाप की दीवानी एहतशाम के पास ही रहती थी। कभी कभार तो आयरा उनके आपसी प्यार से जेलस हो जाती, क्योंकि वो दोनों आपस में मसरूफ होकर उसे भी फरामोश कर जाते थे। अभी भी मायरा बुरी तरह रो रही थी, और वजह यह थी कि एहतशाम कल रात से एक काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, और मायरा के बगैर उसका दिल नहीं लग रहा था। अब तो उसके रोने पर आयरा को भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसके 1000 जतन के बावजूद मायरा चुप नहीं हो रही थी। इससे पहले कि आयरा मायरा को डांटती, तभी रूम का दरवाजा खोलते एहतशाम अंदर दाखिल हुआ।
اسے دیکھ کر جہاں آئرہ نے سکون کا سانس لیا، وہیں احتشام مائرہ کے اس بری طرح رونے پر پریشان ہوتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ احتشام، یہ چپ نہیں ہو رہی، کب سے آپ کو یاد کرتی بس روئے جا رہی ہے، فیڈ تک نہیں لے رہی۔ آئرہ روحانسی ہو کر اس کو بتانے لگی۔ لاؤ مجھے پکڑاؤ۔ احتشام نے مائرہ کو جو ہی اپنی گود میں لیا تو وہ فوری پرسکون ہو گئی، مطلب اسے باپ کی آغوش ہی چاہیے تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر آئرہ صدمے سے دیکھنے لگی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی، اور اب اپنے بابا کی گود میں جاتے ہی وہ پرسکون ہوتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ بابا کی جان بابا کو مس کر رہی تھی؟ احتشام نے مائرہ کے گال پر کس کرتے پوچھا تو جواباً مائرہ اس کے بیئرڈ کی چبھن پر کھلکھلا کر ہنس دی اور خود بھی احتشام کے گال پر لب رکھتی، جیسے اسے بتانے لگی تھی کہ اس نے اپنے بابا کو کتنا مس کیا۔ آپ نے ہر وقت اسے گود میں رکھ کر عادت بگاڑ دی ہے، اب یہ زیادہ دیر آپ کے بنا نہیں رہ پاتی۔ آئرہ جو کب سے ان دونوں باپ بیٹی کا پیار دیکھ رہی تھی، اب تب کر بولی، اور میں بھی اب آپ دونوں کے بنا نہیں رہ سکتا۔ احتشام نے محبت پاش لہجے میں جواب دے کر اپنے دوسرے بازو میں آئرہ کو بھینج کر اس کے ہونٹوں پر کس کی۔ آئرہ بھی اس کے حصار میں آتی سکون سے آنکھیں موند گئی، کیونکہ مائرہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی احتشام کو بہت مس کر رہی تھی۔ احتشام کی کل کائنات اس کی دونوں باہوں میں سمٹ آئی تھی، جو اسے عشق کی حد تک عزیز تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔